Today, I just wanted to express, I don't know what I wanted to express, but I just want to express. Facebook is a beautiful canvas for me since I had joined. It is not was like, to get the likes and the comments, but it was just an, you can say, a blank canvas. On my mood, I just do splash the colors or I just paint it whenever I want. So today I just felt, to share from the heart and the mind, more from the heart, I can say. When yesterday got to know about, I didn't wanted to post anything which is depressive or negative. Yes, it is a very sad thing what yesterday happened, and I am also one of the fan. So it was same way, it was shocked for me also, similar to you, and the same question in mind arises about the relation or the how we are in the society or which society we are living in. जैसे there is a famous line, कि भीड़ में भी लोग तन्हा होते हैं, and similarly he had proved yesterday कि और वो जो चमक दमक चांदनी हम सबको लगती है कि that particular glamour and it's so good, people try to achieve that stardom, and for some reason it's just a bubble that burst out. Is life so cheap? और मीन्स या तो हमें इसकी वैल्यू ही नहीं है, या वैल्यू करके हमने एक डिसीजन ले लिया कि ये अभी जीने के लायक नहीं है. हर कोई की लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरे भी, आपके भी, हर कोई के. एंड वी ऑल डू शो कि वी आर हैप्पी, बट समवेयर स्टिल वी डू लुक फॉर, either you have everything, then also you are looking for something. Obviously, if you have nothing, then definitely you are looking for something, okay? But that something either can you take you towards your success if you take it constructively, either it make you fall down if you take it in a other way. And in the process, in that journey, we all do make mistakes, and that's nothing to do wrong, I think so. क्योंकि मुझे फेक नहीं बनना है, या तो मुझे फेक वर्ल्ड में नहीं रहना है. एंड आई एम ओके वॉट एवर आई हैव डन माई मिस्टेक्स, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट. एंड इफ आई हैव डन knowing the thing that what made me happy, I'm okay with it. I don't regret for that. So same way, and I have not given right to anyone that one can judge my life, or one can, if it's your wish, if you want to blame me or claim me, that's your wish, but it's my turn to take that or not. Okay, so होता है, हर कोई की ज़िंदगी में कोई एक पड़ाव आता है, बट दैट डज नॉट मीन कि वी शुड एंड द लाइफ सच ए वे. हर कोई बंदा शायद इन लोगों के लिए वो ज़्यादा होगा जो एक स्टारडम, एक लेवल, एक आप सेलिब्रिटी लेवल पे पहुंच गए हो, बट शायद हम हर कोई का, we all have those 3 layers, like one layer is publicly, like for everyone, that you know me, it's simple, that my life is public and you know me, so you can say either good about me or either bad about me as you had your experience with me. Second layer is my close friends or the loved ones, or the family members, and they have that
they know better than the public. Okay, again acceptable the judgment whatever they will give, because वो अच्छे के लिए भी हमें गाइड करेंगे, और कहीं पे लगा तो कभी कोई चीज़ ऐसी भी हो जाती है कि वो अपने ही होते हैं जिससे हमें चीज़ बुरी लगती है। एंड एक थर्ड लेवल जो होता है वो कोई और नहीं जानता है। आप अपने आप को बस आप ही जानते हो। मुझे मैं ही जानती हूँ, और वो कोई और आपके अलावा और कोई नहीं जानता। So we all live such lives, and when we say no, that person is dual personality, are you not that? Am I not that? We all are, but still we do expect कि नहीं, हम दूध के धुले हुए हैं, दूसरा वाला जो है वो बंदा अच्छा नहीं है, वो बंदा ऐसा है। और यही कश्मकश में काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स वी डू स्पॉइल, वी डू कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लाइफ अपने साथ में गुजारी, बट यू जस्ट डोंट नो ईच अदर। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि वो 2-5 मिनट भी अगर सुकून के अपने कोई बंदे के साथ अपने निकाले, वो लाइफ टाइम के रिलेशन आपकी बन जाती है। ज़रूरी नहीं है कि वो रिलेशन आगे कितनी बढ़ी या कहाँ पे आपने उससे बात की नहीं की, बट वो आपके दिमाग में एक इम्प्रेशन छोड़ जाता है, और बंदे के लिए यू हैव दैट either रिस्पेक्ट और हेट और वॉट एवर इट इज़, बट दैट पर्सन हैड मेड द इम्पैक्ट इन योर लाइफ। सो आज ऐसा हो चुका है कि वी ऑल आर बिजी, वी वॉन्ट टू बी बिजी, वी वॉन्ट टू अचीव समथिंग, and we don't know what is that something. We do have everything, still we want something. Obviously we don't have anything, then to obviously we want something, but that something is very difficult. Now from life we started, we always wanted to grow physically, emotionally, financially, all wanted to have the space. And for whom? To show to whom? We don't know. It is just like, when we call us society, maybe that 1,000 people who know us or we know them, or a community whom we know or they know us, that is our society. उससे बड़ा क्या है? दुनिया, हम बोलते हैं दुनिया, क्या दुनिया का हर कोई बंदा आपको जान रहा है? सिवा the global leaders or the celebrities. But for us, the common people, society is just of a few people where you live in. Okay, so how much we should allow that external force in our life, and where हमारे दिमाग पे वो हावी हो जाए, हमारे दिल पे वो हावी हो जाए, कितने तक वो हमारे पे है। वी शुड शो अ लिमिट, वी शुड ड्रॉ अ लाइन। काफ़ी बार ऐसी हो जाती है कि हम हर कोई के लिए मर मिटते हैं, हम हर कोई को हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं, हम हर कोई जगह पे हंसते रहते हैं, एंड पीपल दे नो अस, ओ शी इज़ सच अ नाइस पर्सन, ओ ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन, बट इवन दे हैव सर्टेन वैक्यूम्स। द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हैव द डीपेस्ट क्राई। सो इट हैपन्स, but it's not necessary to end the life. Life is challenge, life is change, and that change is constant. वो चैलेंज है तभी हम जी पा रहे हैं, नहीं तो एक बोर्डम आ जाती थी, एक स्टेगमेंट आ जाता था, एंड वी जस्ट स्टे ओवर देयर। उसके आगे शायद हम कुछ ना सोच पाते। बट किसने बनाई है दुनिया, हमें नहीं मालूम है। हम बोलते हैं कि भगवान है, हम बोलते हैं कि आत्मा है, बट दैट कुड बी इन अनदर वर्ल्ड। व्हेन वी आर लिविंग वी जस्ट डोंट नो, वी जस्ट द वे वी डू ब्रीथ द एयर, वी जस्ट डोंट नो हाउ द एयर लुक्स और वॉट एवर इट इज़, बट सेम वे वी डू बिलीव दैट येस देयर इज़ सम सुपर पावर जो हमें हेल्प कर रहा है, जो हमें मोटिवेट कर रहा है, जो हमें पुश कर रहा है।
और शायद हम वो ही शायद वो हमारी आत्मा है या वो भगवान है, या वो आत्मा ही भगवान है. वी डोंट नो. Spiritually, I do not follow, more of the very good. Of course, we do have the motivational speakers and very good people. But मैं एक randomly follow करती हूँ and I do read them as per my strength. But there is a layer that I want to explore myself, अगर वो स्पिरिचुअलिटी है तो वो क्या है मुझे खुद से समझनी है, मुझे खुद से सीखनी है. आई डोंट वॉन्ट टू बी ऑन द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स. डे टू डे लाइफ में भी अगर हम कोई भी एक्शन करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वो काम में भी काफ़ी सारे आपको स्पिरिचुअल पॉइंट्स आपको मिलेंगे इफ़ यू नोट डाउन. बट एंड फॉर दैट यू डोंट हैव टू लुक इन द वर्ल्ड एंड द यूट्यूब वीडियोज़ एंड आज इनका ये मैंने ज्ञान सुना, आज इनका मैंने ज्ञान सुना. नहीं, उसकी शायद ज़रूरत, मैं समझती हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो ज़रूरत नहीं है. बट एट द सेम टाइम being in relation, understanding the person is very important. Don't try to make yourself fake and don't try to leave or surround the fake people around you, जो आपको और नीचे की तरफ लेके जाएंगे, आपके बारे में अच्छा वही बोलते रहेंगे. जो सही होगा वो शायद आपको गलत बोले, और उस टाइम पे बी ओपन फॉर दैट. यही चीज़ होती है. क्योंकि वाई आई एम सेइंग सो, एज आई सेड, आई डोंट नो वाई, बट आई जस्ट वांटेड टू मेक इट आउट. एंड द थिंग इज़ कि ये सब चीज़ें छोटी कनेक्ट करती है. एक बड़ा सा जो हमारे अंदर एक ब्लॉक बन जाता है, एक तो अपने बारे में भी और दुनिया की तरफ से हम कैसे हैं. हम खुद तो जानते हैं अंदर से कि हम कैसे हैं, लेकिन जब दुनिया की तरफ से भी वो धीरे धीरे आने लगता है, एंड यू बिल्ड अप अ प्रेशर फॉर योर सेल्फ इनसाइड समवेयर. सो आई डोंट थिंक सो दैट वी शुड अलाउ दैट प्रेशर in our mind. Being a human, everybody has to leave this world someday. So don't think that we are immortal, and don't feel proud also for the things we are available, and some they are unfortunate, they are not available with it, but that's okay. Leave the thing what makes you happy. Do that thing what makes you happy. Happiness for me is something different. It may be different for you. It's just a state of mind. But still, मुझे शायद छोटी छोटी चीज़ें हैप्पीनेस मुझे देती है. मुझे वो बड़ी अचीवमेंट इतनी मायने नहीं रखती है जितना वो छोटी छोटी रोज़ डे टू डे का जो खुशी मुझे मिलती है, वो मुझे खुश रखता है. सो एंड आई डोंट एक्सपेक्ट कि आज मुझे इसने ये बोला, आज इसने मुझे इतनी लाइक दी, आज इसने मुझे इतने कमेंट्स दिए. अभी हम दो ज़िंदगी में डिवाइड हो चुके हैं. अगर हम वी आर वेरी मच इन द सोशल मीडिया, देन येस वी वांट दैट, वी सीक दैट अट्रैक्शन फ्रॉम द सोशल मीडिया एज वेल एज. तब हम फैमिली या घर के लोगों का हम शायद इतना कनेक्शन थोड़ा सा वहाँ पे लूज़ आउट कर लेते हैं जितना, बिकॉज कहीं ना कहीं अंदर से वो एक गरज है अपने खुद को व्हाट यू से प्लीज़ करने की, अपने आप को खुश रखने की, कि सी लाइक that person had said so good for me, that person had appreciated me. शायद हम बाहर की दुनिया में इतना कुछ ढूंढ रहे हैं और अंदर हमें मालूम है कि हम क्या हैं. वो ढूंढना ज़रूरी है क्या किसी के बोलने पे या किसी के टैग पे ही हम अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे? मिस्टेक्स आपने भी की होगी अगर मेरी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हो तो. मिस्टेक्स मैंने भी की है अगर मैं आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रही हूँ तो. बट वो टैग कहाँ तक हम किसको देंगे, और क्यों हम ये चीज़ें अपने अंदर लेके चले? सोसाइटी अब हमने बनाई है और हर एक बंदा उसका पार्ट है. कोई भगवान तो नहीं है, तो मैं क्यों
आपसे वो एक्सपेक्ट करूँ कि आप मुझे भगवान की तरह लाइक यू ट्रीट मी, और आई शुड टेक यू नॉट एज एन ह्यूमन, एंड आई शुड फील लाइक ओ मैंने कुछ अगर बोल दिया तो मैंने बहुत गलत कर दिया. नहीं, ऑब्वियसली येस, आई एम देयर, आई एम रेडी टू सीक द फॉरगिवनेस for if I've done wrong, but again what is right and what is wrong. मेरी तरफ से जो चीज़ मैंने की मुझे लगती है राइट है, आपकी तरफ से लग रही है वो रॉन्ग है, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसके पीछे रीज़न रहा होगा कि जिससे मैंने जो चीज़ की है वो मुझे राइट लगी और आपकी तरफ से वो आपको रॉन्ग लगी बात. सो इट्स अ कॉम्प्लिकेशन. अगर देखा जाए तो everything is connected with each other. There is so much emotional pressure right now we are living, so much of the social pressure we are living. We want to prove ourselves everywhere that we are the best. we cannot be but still and वो ही एक चक्कर हो जाता है कि अपने अंदर से शायद हम अपने आप को धीरे धीरे खोना शुरू कर देते हैं. एंड वी स्टार्ट टू लाइक टू लुक, टू सीक अदर्स जजमेंट्स, others appreciations, others approach towards us, how they are keeping relation with us. So और ये सब एंड कहीं अगर हमने गलत तरीके से लिया तो ये हमें कुछ और जगह पे लेके जाता है. सो वी ऑल नो, राइट? आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग न्यू. वी ऑल नो, स्टिल वी डोंट नो. सो बाय गाइस, इट्स जस्ट very much honest, and I wanted to just open myself. It is not in particular for anyone or even for myself, but yes, it is just from the heart that why we are complex so much, and the thing what happens in society, it impacts us. So how much we should take it, how much we should deal with it, and how much we should throw as a garbage from our life, and let's just go ahead. That's it. Bye for now.